اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا طریقہ، ابتدائی باتیں۔ سب سے پہلے سنت کے مطابق وضو کریں اور پاک و صاف جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنا رخ قبلہ کی سمت کر لیں، بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور اپنی نظریں سجدہ کی جگہ کی طرف کر لیں۔ دونوں پاؤں اس طرح سیدھے کر لیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کو رخ قبلہ کی جانب ہو۔ مرد اور بچے اس بات کا ہمیشہ خاص خیال رکھیں کہ شلوار، ٹروزر یا پینٹ کے پونچے ٹخنوں سے اوپر ہر حال میں رکھنے چاہیے، کیونکہ پونچے نیچے رکھنے سے مردوں کو ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے منع فرمایا ہے، لہذا نماز میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ نیت۔ اب نماز کی نیت کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو جس ارادے سے کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ اس وقت جس ارادے سے کھڑے ہیں یعنی فلاں نماز کے لیے، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ۔ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا ان کے برابر آ جائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رکھیں۔ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں، یعنی اللہ اکبر کہیں۔ نماز کی یہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز کی ارکان و افعال کے علاوہ ہر کام منع ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لائیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے پونچے یعنی جوڑ کے ارد گرد ہلکا بنا کر اسے پکڑ لیں، اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ بائیں ہاتھ کی کونی کی طرف رہے، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی پھیلا لیں اور اس کی انگلیوں کا رخ دائیں ہاتھ کی کونی کی طرف رہے۔ اس طرح ہاتھ ملا کر ناف سے ذرا نیچے باندھ لیں۔ قیام۔ اپنے ہاتھوں کو مذکورہ بالا طریقہ سے باندھنے کے بعد اب آپ کو اطمینان سے کھڑا ہونا ہے اور کچھ ذکر و تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ کھڑے ہوتے وقت خیال رکھیں کہ آپ کا جسم نہ تو بالکل اکڑے اور نہ بالکل ڈھیلا پڑے، بلکہ اپنی عام حالت پر جسم کو چھوڑ کر خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جائیں۔ اب ثنا پڑھیں۔ ثنا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد اعوذ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ۔ تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کسی سورت یا چند آیات کی تلاوت۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی سی بھی سورت پڑھیں۔ کسی بڑی سورت کی 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रकू, सूरत फातिहा और इसके बाद कुरान मजीद की चंद आयात या किसी सूरत की तिलावत के बाद रकू करें, जिसका तरीका ये है, अपने ऊपर के धड़ को आगे की तरफ इस हद तक झुकाएं कि गर्दन और कमर तकरीबन एक सतह पर आ जाएं, ना इससे ज्यादा झुकें और ना कम। अपनी टांगें बिल्कुल सीधी रखें, इनमें खम ना आने दें। दोनों हाथ घुटनों पर इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई हों, यानी हर दो उंगलियों के दरमियान कुछ फासला हो। दाएं हाथ से दाएं घुटने को और बाएं हाथ से बाएं घुटने को मजबूती से पकड़ लें और खास ख्याल रखें कि इस हालत में कलाइयां सीधी और बाजू तने हुए रहने चाहिए, इनमें खम नहीं आना चाहिए। पांव के टखने एक दूसरे के मुकाबिल यानी आमने सामने रखें। नीज पांव की उंगलियों का रुख किबला की जानब रखें। रकू की तस्बीह, मंदरजा बाला तरीका के बाद रकू करें। रकू की तस्बीह पढ़ें। रकू की तस्बीह को कम अज कम 3 दफा या 5 दफा या 7 दफा आराम आराम से पढ़ें। रकू की तस्बीह, सुबहान रब्बी यल अजीम, सुबहान रब्बी यल अजीम, सुबहान रब्बी यल अजीम। कौमा, रकू के बाद सीधा खड़े होने को कौमा कहते हैं और इसका तरीका यह है कि इस तरह सीधे खड़े हों कि जिस्म में कोई खम बाकी ना रहे और नजरें सजदा की जगह की तरफ रखें। खास ख्याल रखें कि जब तक सीधे होने का इत्मीनान ना हो जाए सजदा में ना जाएं। कौमा की तस्बीह, रकू से खड़े होते हुए कौमा की तस्बीह 1 दफा पढ़ें। कौमा की तस्बीह, समी अल्लाहु लिमन हामिदा। कौमा की तमहीद, और खड़े होकर तस्बीह के बाद कौमा की तमहीद 1 दफा पढ़ें। कौमा की तमहीद, रब्बना लकल हम्द। सजदा, कौमा के बाद तकबीर कहते हुए अपना सर नीचे जमीन पर रखना है, इसे सजदा कहते हैं। सबसे पहले घुटनों को खम देकर इन्हें जमीन की तरफ इस तरह ले जाएं कि सीना आगे को ना झुके। जब घुटने जमीन पर टिक जाएं तो सीने को झुकाना शुरू करें और पहले दोनों हाथ जमीन पर रखें, फिर नाक और आखिर में पेशानी रखें। सजदा की हैयत, सजदा करते हुए आपकी हैयत इस तरह होनी चाहिए। सजदा में सर को दोनों हाथों के दरमियान इस तरह रखें कि दोनों अंगूठों के सिरे कानों की लोक के सामने हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां बंद होनी चाहिए, यानी उंगलियां बिल्कुल मिली हुई हों और इनके दरमियान फासला ना हो। उंगलियों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। कोहनियां जमीन से उठाकर रखें, जमीन पर टिकाना दुरुस्त नहीं। दोनों बाजुओं को अपने जिस्म के पहलुओं से हटाकर रखें। राने पेट से अलग रखें, मिलाएं नहीं। पूरे सजदे में नाक और पेशानी को जमीन पर टिका कर रखें। दोनों पांव उंगलियों के बल इस तरह खड़े रखें कि एड़ियां ऊपर हों और तमाम उंगलियां अच्छी तरह मुड़कर किबला रुख हो जाएं। खास ख्याल रहे कि सजदे के दौरान पांव जमीन से उठने ना पाएं, बल्कि पूरे सजदे में पांव जमीन पर टिका कर रखें। सजदे की तस्बीह, सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें। सजदे की तस्बीह कम अज कम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। सजदा की तस्बीह, सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला। 2 सजदों के दरमियान कादा, नमाज की हर रकत में 2 सजदे करते हैं और दोनों सजदों के दरमियान कुछ देर के लिए बैठते हैं। इस बैठने को कादा या जलसा कहते हैं। कादे में बैठने का तरीका यह है, सजदे से तकबीर कहते हुए
यानी अल्लाह अकबर कहते हुए पहले सर उठाएं, फिर नाक और आखिर में दोनों हाथ उठाएं। ऊपर की सतर में लिखे हुए तरीका के मुताबिक उठते हुए दो जानू बैठ जाएं, यानी बायां पांव बिछाकर इस पर बैठ जाएं और दायां पांव इस तरह खड़ा कर लें कि इसकी उंगलियां मुड़कर किबला रुख हो जाएं। बैठते वक्त दोनों हाथ रानों पर रख लें, मगर उंगलियां घुटनों की तरफ कटी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उंगलियों के आखिरी सिरे घुटनों के इब्तिदाई किनारे तक पहुंच जाएं। कादा में अपनी नजरें अपनी गोद की तरफ रखें। कम अज कम इतनी देर बैठें कि जितनी देर में एक दफा सुबहान अल्लाह कहा जा सकता है। दूसरा सजदा, दूसरे सजदे में भी पहले सजदे की तरह तकबीर कहते हुए जाएं, यानी पहले दोनों हाथ जमीन पर रखें, फिर नाक और आखिर में पेशानी, और अपने जिस्म की हैयत इस तरह कर लें जिस तरह पहले सजदे में की थी। दूसरे सजदे से उठना, दूसरे सजदे से तकबीर कहते हुए पहले सजदे की तरह उठें, यानी पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक उठाएं, फिर हाथ और फिर घुटने, और सीधे खड़े हो जाएं। खड़े होते हुए जमीन पर हाथ रखकर सहारा नहीं लें, बल्कि घुटनों पर हाथ रखकर उठें। अब आपकी दूसरी रकत शुरू हो गई। दूसरी रकत और इसके बाद की रखते हैं। तकबीर तहरीमा से लेकर दूसरे सजदे से उठने तक आपने जितना भी अमल किया, इसके मजमूए को एक रकत कहते हैं। पहली रकत के बाद जितनी भी रकतें अदा करनी हो इसी तरह अदा करें, बस इतना फर्क होगा कि तकबीर तहरीमा, सना और ताउद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर रकत तस्मिया से शुरू होगी। कादा में बैठना, नमाज पढ़ते हुए हर दो रकत के बाद इसी तरह बैठना होता है जिस तरह दो सजदों के दरमियान बैठते हैं। खा आप 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हों या 3 रकत वाली या 4 रकत वाली, हर 2 रकत के बाद बैठना जरूरी है। सजदों के दरमियान वाले कादा और हर 2 रकत के बाद वाले कादा में बैठने का अंदाज में कोई फर्क नहीं। अलबत्ता इतना फर्क है कि हर 2 रकत के बाद वाले कादा में कुछ अज़कार पढ़ने का इजाफा होगा, जिसकी तफसील आगे आ रही है। कादा की किस्में, हर 2 रकत के बाद वाले कादे 2 तरह के होते हैं, कादा ऊला और कादा अखीरा। कादा ऊला इस कादे को कहते हैं जो 3 या 4 रकतों वाली नमाज में 2 रकतें पढ़ने के बाद और तीसरी रकत शुरू करने से पहले किया जाता है, और कादा अखीरा इस कादे को कहते हैं जो किसी भी नमाज में नमाज की आखिरी रकत में किया जाता है, खा वो नमाज 2 रकत वाली हो या 3 रकत वाली हो या 4 रकत वाली हो। यानी अगर 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला कादा ही कादा अखीरा होगा और इसमें कादा अखीरा के अज़कार पढ़ने होंगे। दोनों कादों के अज़कार व अमाल में थोड़ा सा फर्क है। कादा उला का तरीका, कादा उला का तरीका यह है कि आप दूसरी रकत का दूसरा सजदा करने के बाद तकबीर कहते हुए यानी अल्लाह अकबर कहते हुए इसी तरह बैठ जाएं जिस तरह 2 सजदों के दरमियान बैठे थे। तशहुद और अत्तहियात, और फिर तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ते हुए जब आप अशहदु अल्लाह पर पहुंचे तो अपनी शहादत की उंगली से इशारा करें। तशहुद या अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। शहादत की उंगली से इशारा करने का तरीका, अत्तहियात पढ़ते हुए जब आप अशहदु अल्लाह पर पहुंचे तो शहादत की उंगली उठाकर इस तरह इशारा करें कि बीच की उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्का बनाएं, छिंगली और इसके बराबर वाली उंगली बंद कर लें और शहादत की उंगली को इस तरह उठाएं कि उंगली किबला की तरफ झुकी हुई हो, बिल्कुल आसमान की तरफ उठी हुई ना हो। जब इल्लल्लाह पर पहुंचे तो शहादत की उंगली नीचे कर लें। तीसरी और चौथी रकत पढ़ने का तरीका, तशहद पढ़कर आप तकबीर कहते हुए तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। जिस तरह पहली रकत पढ़कर खड़े हुए थे, खड़े होते हुए जमीन का सहारा ना लें बल्कि घुटनों
बल्कि हाथों और घुटनों के सहारा से उठें। तीसरी रकत इसी तरह पढ़ें जिस तरह आपने दूसरी रकत पढ़ी थी। फिर तीसरी रकत का सजदा करने के बाद अगर आप 3 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो कादा अखीरा में बैठ जाएं, जिसका तरीका आगे आ रहा है। और अगर 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएं और चौथी रकत इसी तरह अदा करें जिस तरह आपने दूसरी और तीसरी रकत अदा की थी। और फिर चौथी रकत के दूसरे सजदे के बाद तकबीर कहते हुए कादा अखीरा के लिए बैठ जाएं। कादा अखीरा का तरीका आखिरी रकत के बाद कादा अखीरा में इसी तरह बैठ जाएं जिस तरह कादा उला में बैठे थे, और फिर कादा उला की तरह तशहद पढ़ें। दुरूद शरीफ, तशहद के बाद दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ के बाद की दुआ पढ़ें। रब्बि जालनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। सलाम फेरने का तरीका। सलाम फेरने का तरीका यह है कि दुआ के बाद सलाम के अल्फाज अदा करते हुए पहले सीधी तरफ गर्दन को इतना मोड़ें कि अगर कोई आपके पीछे सलाम फेरने का तरीका। सलाम फेरने का तरीका यह है कि आप दुआ के बाद सलाम के अल्फाज अदा करते हुए पहले सीधी तरफ गर्दन को इतना मोड़ें कि अगर आपके पीछे बैठा हुआ सलाम फेरने का तरीका। सलाम फेरने का तरीका यह है कि दुआ के बाद सलाम के अल्फाज अदा करते हुए पहले सीधी तरफ गर्दन को इतना मोड़ें कि अगर कोई आपके पीछे बैठा हुआ हो तो उसे आपका दायां रुखसार नजर आ जाए। और अगर सलाम फेरने का तरीका। सलाम फेरने का तरीका यह है कि दुआ के बाद सलाम के अल्फाज अदा करते हुए पहले सीधी तरफ गर्दन को इतना मोड़ें कि अगर कोई आपके पीछे बैठा हुआ हो तो उसे आपका दायां रुखसार नजर आ जाए। और फिर सलाम के अल्फाज अदा करते हुए अपनी गर्दन को बाएं तरफ इतना मोड़ें कि अगर कोई आपके पीछे बैठा हुआ हो तो उसे आपका बायां रुखसार नजर आ जाए। जब दाएं तरफ सलाम फेरे तो ये नियत करें कि दाएं तरफ जो इंसान और फरिश्ते हैं उनको सलाम कर रहे हैं, और बाएं तरफ सलाम फेरते हुए बाएं तरफ मौजूद इंसानों और फरिश्तों को सलाम करने की नियत करें। अहम हिदायत, नमाज के तमाम अरकान व अमाल को ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ अदा करना जरूरी है, इसलिए जल्दी जल्दी नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुकून के साथ नमाज के हर अमल को इसके मसनून तरीका के मुताबिक अदा करना चाहिए।